Welcome to economics class. Today we will discuss about the functions of commercial banks. In fact, we are going to start the sixth chapter of macroeconomics. This is related with banking system. In this very video, we will discuss about what is banking, what is a bank, how can we define a commercial bank, then the functions of commercial bank. Got it, beta? Let's start the topic. What is a banking system? Banking system is a system or banking is a process of accepting deposits and lending or advancing loans. Now, what's about a bank? Actually, bank is an institution which receives funds from the public and gives loans and advances to those who need them. अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं, बैंक अपने यहाँ भी है, अपने एरिया में भी है. तो ये जो बैंक्स हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जिनके पास सरप्लस है वो अपनी मनी को वहाँ डिपॉजिट कराते हैं और जिनको पैसों की ज़रूरत होती है दे कैन बोरो फ्रॉम द बैंक. सो द टू मेन फंक्शंस ऑफ अ बैंक is two main functions of a bank are number one, accepting the deposits, and second is advancing the loans. Now, what is banking? Banking is a process of accepting deposits and lending money or uh, advancing loans. Now, what's about the commercial banks? A profit making financial institution which accepts checkable as well as non-checkable deposits from the people and offer different kind of loans for the purpose of consumption or investment is termed as commercial banks. Accepting deposits means checkable deposits as well as non-checkable or uncheckable deposits. We will discuss about these deposits in next or the following slides. Now, कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन को प्रोवाइड करना, मीन्स एडवांसिंग लोन. कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसी को हम कमर्शियल बैंक कहेंगे. अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा तो हम उसको कमर्शियल बैंक नहीं कहेंगे. जैसे LIC है, LIC को हम कमर्शियल बैंक नहीं कहते, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम कमर्शियल बैंक नहीं कहते क्योंकि ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को लेकिन ये लोन प्रोवाइड नहीं करता. सो इट इज़ द इसेंशियलिटी of a financial institute to be known as commercial bank, that is the first one, accepting deposits and advancing loans. Now move to the next topic. This is about the functions of commercial banks. The very first is accepting deposits. Commercial bank accepts deposits from the public in the form of checkable or non-checkable deposits. For example, saving and current account आर एंड फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स. सबसे पहले हम सेविंग और करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं. सेविंग और करंट अकाउंट जनरली ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि कई बार कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिटर से चार्जेस भी ले लेता है सेविंग और करंट अकाउंट के लिए. ये ऐसे हैं जो चेकेबल हैं, जिनको कितनी भी बार हम निकाल सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट करा सकते हैं, कभी भी हम इनको विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी विड्रॉन एनी टाइम थ्रू चेक. दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज checkable deposits. Now, second is this is about the fixed deposits or recurring deposits. Fixed deposits are also known as term deposits. इनका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, इसको हम थ्रू चेक नहीं निकाल सकते. अगर मैंने 5 साल के लिए पैसे जमा कराए हैं, 50,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट कराया फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, देन इट विल बी नोन एज टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट. यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी हायर अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. मीन्स व्हाट वी कैन से longer the time period, higher will be the rate of interest. Now, next is the recurring deposit. Recurring deposits का मतलब होता है कि हर फिक्स ड्यूरेशन पर अमाउंट डिपॉजिट कराया जाए.
जैसे मैंने एक अकाउंट खोला बैंक में और मैं पर मंथ ₹5000 डिपॉजिट करा रही हूँ और ये मुझे 5 ईयर्स तक डिपॉजिट करानी है, ये बन जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, सो रिकरिंग डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट के कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन सेविंग और करंट के से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, longer the time period, higher will be the rate of interest provided by the commercial banks to their depositors. Then this is about the providing loans or advancing loans. Commercial bank provides loans and advances to the public to fulfill their needs of money. अभी हमने डिस्कस किया जिनके पास सरप्लस है वो डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक्स में और जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से बोरो कर सकते हैं। अब मनी की ज़रूरत कहाँ किस पर्पज़ के लिए पड़ती है? फॉर कंजम्पशन पर्पज़ एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़. लोन may be granted in form of cash, credit, ordinary loans, overdraft, discounting of bills, short term loans, consumer credit etc. ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, सो इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कैश की फॉर्म में मैंने 10 लाख का लोन लिया, तो अगर मुझे 10 लाख के 10 लाख एक ही टाइम में चाहिए तो मुझे 10 लाख इकट्ठे ही मिल जाएंगे। दूसरा वो बैंक क्या कर सकता है, मेरा एक अकाउंट खोलेगा अपने ही बैंक में, मेरे नाम से एक अकाउंट खोलेगा और 10 लाख रुपए उसमें डाल देगा, तो मुझे जितने पैसों की वहाँ से ज़रूरत होगी मैं उसको विड्रॉ कर सकती हूँ। सो यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, एक होते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सेकेंडरी डिपॉजिट्स को डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर मेड बाय द जनरल पब्लिक और पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। मैंने एक अकाउंट खोला और उसमें मैंने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, दिस इज़ द प्राइमरी डिपॉजिट्स, क्योंकि मैंने जमा कराए थे। ऑन द अदर हैंड, जब बैंक से मैं लोन ले रही हूँ तो बैंक ने एक अकाउंट खोला मेरा और उसमें 10 लाख रुपए डाल दिए, दिस इज़ द सेकेंडरी डिपॉजिट्स बिकॉज these deposits are made by the commercial banks in favor of the borrower. पहला क्या था, डिपॉजिटर, मैं डिपॉजिटर थी और मैंने खुद उसको खोला था और वो था मेरा प्राइमरी डिपॉजिट, बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंडरी क्या है, द डिपॉजिट्स दैट आर मेड बाय कमर्शियल बैंक्स इन फेवर ऑफ द बोरोर, दीज आर द derivatives or secondary deposits. Now move to the next topic. What are the demand deposits? We have just discussed about the demand deposits or checkable deposits. Then what are the time deposits or fixed deposit or non-checkable or uncheckable deposits? We have also discussed about this topic. Now this is one of the most important question. How commercial bank create credit in the economy or how commercial banks add to the money supply. Dear students, in the previous video we discussed about the money supply, who are the suppliers of money. We discussed that money is supplied by the central bank because central bank of the country has a keen authority of issuing currency. Second is government. Government can issue coins as well as 1 rupee note in India. Then the third one is commercial banks. बच्चे, commercial banks do not have any authority of issuing currency, but they contribute in money supply because of the process of credit creation performed by them. Now we will discuss about the process of credit creation. इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। देखो बेटा, बैंक में जब डिपॉजिटर अपने डिपॉजिट को रखते हैं तो बैंक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। सपोज करिए कि मैंने 50,000 रुपीज़ 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कराए, तो 5 साल के बाद मुझे 50,000 तो मिलेगा नहीं, मतलब मुझे 70,000 या 75,000 मिलेंगे। सपोज करिए कि मुझे 75,000 मिलेंगे। अब बैंक मेरे 50,000 को अगर अपने लॉकर में रख दे तो वो 75,000 कैसे बनेंगे? यहाँ पर क्योंकि उससे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपने टोटल डिपॉजिट्स का
कुछ प्रोपोर्शन एज अ रिजर्व अपने पास रखेगा और बाकी सारे को लोन प्रोवाइड कर देगा। मीन्स मुझे अगर वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है मेरी सेविंग्स पर, तो कमर्शियल बैंक अपने बोरोर से, जिनको वो लोन दे रहा था, उनसे कम से कम 12% 15% देगा। मीन्स वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, डिपॉजिटर को कम देगा, और जो बीच में उसका गैप बचेगा दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक डिपॉजिटर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे, बोरोर से ज़्यादा चार्ज करेंगे, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Commercial bank increases the flow of money in an economy by credit creation. This process of credit creation is an outcome of its two primary functions. What are the two primary functions? First is the acceptance of deposits and second is the advancement of loans. Now, the banks issue loans from their cash reserves or their deposits with the confidence, ये बात बहुत important है, with the confidence of their historical experience that the all depositors will not withdraw their funds at the same time. उनको उनका historical experience ये बताता है कि सारे के सारे depositors एक ही टाइम पे विड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए सारे ही अमाउंट को एज अ कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस वे कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट many more times than their cash reserves and contributes to increase money supply in the economy. Demand deposits of the commercial banks are many times more than their cash reserves. जितना उनका कैश रिजर्व होता है उससे कहीं ज़्यादा वो डिमांड डिपॉजिट्स को जनरेट करते हैं। अभी हम इस प्रोसेस को करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करें। मनी क्रिएशन इज डिटरमाइंड बाय two factors. The very first one, the amount of their initial deposit. बैंक के पास कितना डिपॉजिट आया है। देन द लीगल रिजर्व रेशो. लीगल रिजर्व रेशो is the minimum ratio of deposits legally required to be kept as cash by the banks. अभी हमने डिस्कस किया कि ये तो ठीक है कि all the depositors will not come at the same time for withdrawal, लेकिन आएंगे तो सही ना, सभी नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे, कुछ तो बैंक को अपने पास कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा। और इंडिया में RBI इज़ द सेंट्रल बैंक एंड RBI इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ एंटायर बैंकिंग सिस्टम। सो RBI LRR को डिफाइन करेगा, मतलब डिसाइड करेगा। LRR refers to the legal reserve ratio. Legal reserve ratio refers to the minimum ratio of deposits legally required to kept as cash by the banks, legally or mandatory required to be kept. जैसे हर कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट तो अपने पास रखना पड़ता है, कुछ अमाउंट उसको रखना पड़ता है RBI के पास। हम अपने आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये LRR उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम एक और पॉइंट निकालेंगे। व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर refers to 1 upon LRR and total money creation. This is very important point. This is initial deposit multiplied by 1 upon LRR. अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इस फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। बच्चे, जितना ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट होगा बैंक का, उसमें उतना ही ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। मीन्स द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन capacity of commercial banks are: number 1, initial deposits. Higher the initial deposits of the commercial banks, higher will be the credit creation capacity of the commercial banks. On the other hand, second component, this is legal reserve ratio. आपको फॉर्मूले में नज़र आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर में है। जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डायरेक्टली या पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। अभी हमने डिस्कस किया, हायर द इनिशियल डिपॉजिट, हायर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, दैट इज देयर विल बी more money creation. On the other hand,
LRR मतलब उसको कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा पैसे कैश रिजर्व की फॉर्म में रखने पड़ेंगे और वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगा. इट मीन्स there is an inverse relationship between LRR and total money creation. Higher the LRR, lower will be the credit creation capacity of commercial bank. देखो बच्चे, अगर हम ये कहें कि बैंक के पास 100 करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट है, तो 100 करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट है और LRR जो है वो है 20%. इसका मतलब कमर्शियल बैंक को 20% अपने पास रखना है. मीन्स 20 करोड़ रुपीज़ उसको एज अ कैश रिजर्व अपने पास रखना है. बाकी वो 80 करोड़ का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है. गॉट इट बेटा. 80 करोड़ उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है. अब सपोज करिए कि ये LRR बढ़कर हो गया 40%. LRR बढ़कर हो गया 40%. अगर LRR 40% हो गया तो अब कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी 40 करोड़ को एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा. अब वो कितना लोन दे पाएगा? 60 करोड़ का. मतलब उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो गई है. सो हमने यहाँ से ये निकाला, हायर द इनिशियल डिपॉजिट्स, हायर विल बी द credit creation capacity of the commercial bank. That is, there will be increase in total money creation, also known as total demand deposits. जितना ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा और जितना ज़्यादा LRR होगा उतना ही मनी क्रिएशन कम हो जाएगा. सो द टू फैक्टर्स ऑन विच credit creation capacity of commercial banks depends. Number one, the amount of the initial fresh deposits. There is positive relationship between these two, and then the LRR. There is an adverse relationship between legal reserve ratio and credit creation capacity of the commercial banks. Now it can be explained with the help of an illustration. Suppose LRR is 20% and fresh deposits are rupees 10,000. So this is all about the explanation that bank knows by their historical experience that all the depositors would not show up in the banks to withdraw all the deposits at the point of time. हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ 20% रख देने से ही रिज़र्व की फॉर्म में रख देना ही बहुत है, बाकी सारा रिज़र्व फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है. अभी मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा और आपको बता रही हूँ, फिर हम आगे चलेंगे. देखो बच्चे, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि टोटल मनी सप्लाई और टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स और फ्रेश डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन LRR. इनिशियल डिपॉजिट कितना है बच्चे? 10,000. क्लियर? और LRR कितना है? 1/20. क्योंकि ये परसेंटेज में है, 20% है, तो ये बन जाएगा 100/20. ये ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दिया, ये आपका 5 आ गया, मतलब ये आ गया 50,000. अब आपने क्या ध्यान रखना है? According to this very example, the commercial bank will be able to generate or create credit worth rupees 50,000 crores on the basis of this fresh deposit of rupees 10,000 crore. अगर यहाँ मैं सिर्फ रुपीज़ दे रही हूँ तो फिर ये मेरा रुपीज़ 50,000 आ जाएगा. मतलब 10,000 से वो 50,000 का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है. ये मुझे कैसे पता लगा? एक तो मैंने अपना ये फॉर्मूला यूज़ किया, दिस इज़ इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन LRR. दूसरा मैं इसमें क्या कर सकती थी, सीधा ही मैं एक मनी मल्टीप्लायर ले लेती. मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? दिस इज़ 1 अपॉन LRR. दिस इज़ 100/20 मीन्स 5. अगर मनी मल्टीप्लायर मेरा 5 आ गया है, इसका मतलब कमर्शियल बैंक विल बी एबल टू क्रिएट क्रेडिट 5 टाइम्स देन द इनिशियल डिपॉजिट. 1 अपॉन LRR करते ही मुझे 5 मिला और यहाँ से मुझे ये पता लगा
the commercial bank is capable to generate the credit 5 times than its initial deposit. Initial deposit कितना है 10,000 और मनी मल्टीप्लायर कितना है 5, तो इसका मतलब वो 50,000 का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा। 10,000 तो उसके पास कुल है जिसमें से 50,000 का वो क्रेडिट क्रिएट कर पा रहा है। चलिए देखें कैसे हो रहा है ये। इसमें ये पूरा आपका टॉपिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं इसकी एक टेबल आपको कराने लगी हूँ, टेबल नहीं है, चलिए इसको हम ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या था, उसके पास 10,000 थे और 10,000 में से बच्चे 10,000 में से उसने क्या किया 2,000 को उसने अपने पास कैश रिजर्व के फॉर्म में रख लिया, बाकी 8,000 उसने लोन दे दिया। जो 8,000 उसने लोन दे दिया, ये कमर्शियल बैंक अपने बोरोर का एक डिपॉजिट खोलेगा, डिमांड डिपॉजिट खोलेगा। इस 8,000 का जो उसने डिमांड डिपॉजिट खोला, ये उसका बन जाएगा डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट। इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना रही हूँ। चलिए बेटा, हम पहला ले लेंगे राउंड 1। दिस इज राउंड 1। राउंड 1 में आपके पास आ जाएगा राउंड 1, ये है आपका डिमांड डिपॉजिट, ये है आपका लोन और ये है आपका कैश रिजर्व, जिसको हम मिनिमम रिजर्व भी बोल सकते हैं या मैं इसको लीगल रिजर्व्स भी बोल सकती हूँ। चलिए मैं इसको मिनिमम रिजर्व्स बोल देती हूँ। फर्स्ट पीरियड में डिमांड डिपॉजिट कितने थे बच्चे 10,000, इसमें से उसने क्या किया 2,000 का कैश उसने अपने पास रख लिया। क्यों रखा 10,000 में से 2,000? क्योंकि उसको 20% अपने पास रखना था। बाकी 8,000 का उसने बना दिया, लोन प्रोवाइड कर दिए। ठीक है। सेकेंड पीरियड में क्योंकि ये जो 8,000 थे ये कैश नहीं दिए गए थे, ये कमर्शियल बैंक ने एक नया डिमांड डिपॉजिट खोला था। किसके फेवर में? बोरोर के फेवर में। तो ये जो 8,000 का डिमांड डिपॉजिट बना है, इसमें 10,000 वाला तो है उसका प्राइमरी, और जो 8,000 का आया है ये है उसका सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। अब फिर वही प्रोसेस शुरू हो गया। इसमें से कमर्शियल बैंक को क्या करना है बच्चे 20% अपने पास रखना है, मतलब 8,000 का 20% हमारा बनेगा 1,600। 1,600 को वो अपने पास रख लेगा और 6,400 का वो क्या कर देगा बच्चे, लोन जनरेट कर देगा। थर्ड पीरियड में ये जो 6,400 था, यही 6,400 फिर से डिमांड डिपॉजिट बन जाएगा और इसका 20% फिर मिनिमम रिजर्व और बाकी बचा हुआ लोन। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल nth पीरियड। nth पीरियड में क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट बन जाएंगे 50,000 के। क्लियर बेटा? इसमें से 10,000 वो अपने पास कैश के फॉर्म में रख लेगा और 40,000 का वो लोन क्रिएट कर देगा, क्रेडिट क्रिएट कर देगा। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 10,000 बैंक विल बी एबल टू क्रिएट क्रेडिट वर्थ ₹50,000। ठीक है। और इस 50,000 में से 10,000 विल बी केप्ट एज कैश रिजर्व, उसका एज इट इज़ 20% अपने पास रख लेगा वो और 40,000 का लोन दे देगा। बड़ा घपला सा हो रहा है ना कि 10,000 तो उसके डिमांड डिपॉजिट इनिशियल थे, 10 उसके पास कैश रिजर्व भी पड़ा, लेकिन उसे इधर उधर करके 40,000 का लोन और दे दिया, मतलब टोटल मनी क्रिएशन हो गई उसकी 50,000। एक्चुअली देखने में मुश्किल लग रहा है, ये हैरानी भी हो रही है, लेकिन बैंक बहुत क्लेवर होता है और इंडियन बैंक्स तो वैसे ही अपनी फंक्शनिंग के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में बैंक फेलियर बहुत कम होते हैं। रीज़न क्या है? सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉर्टगेज्ड होते हैं, मींस अगेंस्ट सिक्योरिटी दी जाती है। बैंक जब लोन देते हैं तो कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं, इसलिए जनरली बैंक्स फेल नहीं होते। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बच्चे आपको ये सब बहुत अच्छे से लर्न करना है बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now, we will discuss about the limitations of credit creation by the commercial banks. Limitations में मतलब credit creation का process है तो बहुत अच्छा, और इंडिया में प्रेजेंटली जब से जनधन योजना आई थी, जनधन योजना क्या था कि हर इंडियन को
बैंक में डिपॉजिट ओपन करना था, अपना एक अकाउंट ओपन करना था, ज़ीरो बैलेंस भी अकाउंट ओपन किए गए थे। तो उससे क्या हुआ कि जो आइडियल कैश लोगों के घर में पड़ा हुआ था वो लोगों ने बैंक में जमा करा दिए, और जब बैंक में पैसे पहुंचते हैं तो वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं। सोच कर देखिए कि मैंने 50,000 रुपये अपने चीनी के डिब्बे में छुपा कर रखे हुए हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव है। वो 10 साल बाद भी 50,000 ही बचेंगे। लेकिन अगर मैं वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी तो बैंक उससे क्या करेगा, फर्दर लोन देगा। एक तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसका, दूसरा उसको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पसेस मीन्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। सो जो आइडियल कैश था, बेकार का कैश था, वो प्रोडक्टिव बन जाता है जब हम अपने सरप्लस को बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन, कैश अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक, द हायर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट made by the public, the higher credit creation from commercial bank can be seen. But there is a certain limit on the amount of cash that can be held by the banks at a time. This limit is determined by the central bank, as the central bank may contract or expand this limit by selling or purchasing the securities. इस पॉइंट को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर रही हूँ क्योंकि अब हमें परचेजिंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं करना। यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, हम ये पढ़कर आए कि कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है डिमांड डिपॉजिट्स, इनिशियल डिमांड डिपॉजिट्स। तो जितने ज़्यादा इनिशियल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उतना ही क्रेडिट क्रिएशन होता है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में वेयर पीपल डू नॉट पोजेस द बैंकिंग हैबिट्स, लोगों को आदत ही नहीं होती बैंकों को यूज़ करने की, वो बैंक्स में पैसे रखते ही नहीं हैं और ना बैंक से उधार लेते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कमर्शियल बैंक कहाँ से डिपॉजिट लाएगा और किसको लोन प्रोवाइड करेगा? मीन्स हेल्दी बैंकिंग हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब से जन धन योजना आई है तब से हमारा बैंकिंग हैबिट्स डेवलप हुई है, उससे पहले हमारी बैंकिंग हैबिट्स बहुत कम थी। इंडिया में सिर्फ 20 to 30% लोग ऐसे थे जिनके बैंक अकाउंट थे, लेकिन अब इंडिया में एक बहुत रिमार्केबल प्रोपोर्शन ऐसा है जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं और दे आर यूजिंग दीज फैसिलिटीज़ ऑफ द बैंक्स। और दूसरा इसमें क्या आ रहा है जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास कितने डिपॉजिट रख सकते हैं, कितना कैश वो रख सकते हैं, कितना अमाउंट वो रख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज़ द आरबीआई। अब अगर आरबीआई की पॉलिसी ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स ना आएँ तो कमर्शियल बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट्स को नहीं बढ़ा पाएगा, और अगर उसके डिमांड डिपॉजिट्स ज़्यादा नहीं होंगे तो वो क्रेडिट क्रिएट भी नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, दिस इज़ अबाउट द कैश रिजर्व रेशो और सीआरआर, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक को एलआरआर का भी हमने डिस्कस किया था कि एलआरआर एक मिनिमम रिजर्व उसको मेंटेन करना पड़ता है विद इटसेल्फ एज वेल एज विद द आरबीआई। अब जितना ज़्यादा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो या एलआरआर होता जाएगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की कम होती जाएगी, और ये भी गवर्नमेंट के और सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलआरआर को बढ़ाया या कम किया जाता है। सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। देन एक्सेस रिजर्व्स, this takes place when a country faces recession. At that time, banks find it conducive in maintaining reserves in place of lending, which leads to less credit creation. जब रिसेशन का पीरियड है, बैंक को ये लगता है कि पैसे डूब जाएंगे, तो बैंक क्या करता है, देना ही नहीं चाहता। अगर वो देने के मूड में ही नहीं है, लोन एडवांस करना ही नहीं चाहता, तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कम हो जाएगा। मतलब वो अपने पास एक्सेसिव रिजर्व रखना चाहता है, वो लोन ज़्यादा देना ही नहीं चाहता। देन करेंसी ड्रेनेज, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द पब्लिक इज़ नॉट डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक्स। अभी मैंने आपको बैंकिंग हैबिट्स का पॉइंट बताया था, वो यही पॉइंट है। बैंक में पैसे आते ही नहीं। अगर लोगों को बैंकिंग हैबिट से नहीं है, लोग अपने सरप्लस को बैंक में जमा कराने की बजाय अपने डिब्बों में रखना चाहते हैं, चीनी के डिब्बे में, अपने घर के अलमीरा में या बॉक्स में रखना चाहते हैं, तो इससे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एडवर्सली अफेक्ट होगा।
Then borrower availability. Credit creation will flourish if there are borrowers. लोग लोन तो लेना चाहें, अगर लोन लेना ही नहीं चाह रहे या लोगों का पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट का मतलब रिसेशन पीरियड है, लोग नया काम नहीं शुरू करना चाह रहे, कंजम्पशन के लिए लोन नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं ले रहे, तो भी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस नहीं होगा. मीन्स दीज 2 points आर बेसिकली related with the banking habits of the people. Banking habit means लोग अपने डिपॉजिट नहीं जमा करा रहे और सेकेंडली लोग बोरो भी नहीं कर रहे. देन द लास्ट पॉइंट, this is about the prevalent business conditions. If an economy is witnessing a depression, then the business will not be seeking credit, which leads to contraction of credit creation. अभी मैंने आपको बताया रिसेशन का या डिप्रेशन का टाइम है, लोग विलिंग ही नहीं है, पेसिमिस्टिक बिहेवियर है उनका. पेसिमिस्टिक का मतलब निराश हैं लोग, और वो ना तो बोरो कर रहे हैं ना वो नया काम शुरू कर रहे हैं. Whereas if a nation is prospering, then business will seek new funds in the form of credit from the banks, which leads to credit creation. अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, तो the level of economic activities or the level of business is quite low. People or the business class will not borrow at all. तो इससे credit creation process adversely affect होगा. So this is all about the limitations of credit creation. बच्चे वैसे तो सीधा क्वेश्चन, सीधा टॉपिक बन रहा है आपका, लेकिन आपको बड़ा अच्छे से इसको हैंडल करना है. फिर से बता रही हूँ, आपको अपने इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करना है. सबसे पहले आप लर्न करोगे व्हाट इज़ बैंकिंग, देन what is how can you define a bank, then what are commercial banks, then why LIC cannot be categorized as a commercial bank, because LIC just accept the deposit but does not provide loan. That's why LIC cannot be called a commercial bank. LIC will just remain a financial institute. Then the two functions are there. One is accepting deposit and second is the providing loan. In case of accepting deposit, a new question arises. This is about the different types of deposit. That is the checkable, non-checkable, saving, current account deposit, fixed and recurring deposits, etc. Then this is demand deposit, then time deposits, then the process. आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से करिए, आप टेबल की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. देन दिस इज़ अबाउट द लिमिटेशंस को भी आपने करना है, बहुत लंबा नहीं खींचना, लेकिन किसके साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है, किसके साथ उसका एडवर्स रिलेशन है, एवरीथिंग इज़ टू बी क्लियर प्रॉपरली. सो दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, डू दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक्स एंड डू योर वर्क प्रॉपरली. एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर आपके, सो आप इस बारे में नहीं रहिए कि बिना पढ़े ही काम चल जाएगा. बच्चे, आफ्टर एवरी वीडियो आई यूज़ टू गिव यू questions or homework, and you are expected to do these questions in your fair notebook. So dear students, stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye dear students.